Good morning to all. In the next part of the video, we'll be continuing with the question number 5. The prime factorization of a given number we have to get in it. So in the given number, we just have to have the prime factorization and choose the correct option. So 3825 is my number. Then we are going to divide it by 3. How to select the given prime factors? You must be knowing it that if the sum of the digit is divisible by 3, then the whole number is going to be divisible by 3. So let us check it out. 8 plus 3, it is 11. 11 plus 2, it is 14. And 13 and 13 plus 5, it is 18. And 18 is divisible by 3, and then the number is divisible by 3. So on dividing it, we can have the another number, that is 1275. Again, it is divisible by 3, and then we'll be dividing it by 5, because the last digit is 5 or 0, then the number is divisible by 5. It means we can have started with 5 also, because the first digit also is having the last number as 5. But it is okay, we can start with the lowest prime factors to do the prime factorization. लेकिन अगर आपने 5 से भी शुरुआत की है तो भी आपसे कोई गलती नहीं होगी. So next number again we'll be having is 85, and lastly 17 we are getting, which is a prime number, and we could not have any other factor for 17. So in the given options you can match it. 3 is 2 times, the power of 3 should be 2. 5 is 2 times, so power of 5 should be 2, and then 17 is 1 time, so we'll be having 17 here. So you can see we are having the factor like 3 to the power 2, 5 to the power 2, and then 17 with the factors. But अगर देखा जाए तो ये वाला फैक्टर भी आपका 5 into 5 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, बट दिस आंसर इज इनकरेक्ट बिकॉज वी आर आस्किंग फॉर द प्राइम फैक्टराइजेशन. और अगर आप जानते होंगे तो 25 इज नॉट ए प्राइम नंबर, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर. सो विल बी गोइंग विद द लीस्ट नंबर्स विच आर द फैक्टर्स. तो आपका प्राइम नंबर्स में ही ये ब्रेक होना चाहिए. तो नहीं भी अगर हम इसका आंसर निकालते तो यू कुड हैव अंडरस्टूड टू जस्ट cancel out which are the not correct one. So if I see 21, it is also composite, not a prime factorization. 35, it is also composite, not a prime factorization. And 25, which is also composite, not a prime factorization. So ये तीन हमारे अगर prime factors नहीं हैं, so the last one is 3, 5 and 17 where all are prime factors. Definitely this would have been the right answer. तो कभी कभी ऐसा होता है एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है. बाय योर नॉलेज ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन यू कैन से द गिवन आंसर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन. द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव. दोनों इंक्लूसिव का मतलब कि सारे नंबर जितने भी होंगे आपके 1, 2, 3, 4 से लेकर के 10 तक, सभी से वो ऐसा नंबर होना चाहिए जो डिविजिबल होना चाहिए. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है सो वी रिक्वायर द एलसीएम ऑफ ऑल द गिवन नंबर्स. अगर इंक्लूसिव दिया रहेगा तो वी विल टेक 1 and 10 ऑल्सो. इफ इट इज़ एक्सक्लूसिव वी विल ओनली टेक फ्रॉम 2 to 9. वी विल नॉट टेक 1 and 10. So right now it is inclusive, so we are going to take the LCM of all these given numbers. But LCM निकालने का ये मतलब नहीं है कि आप सभी को प्रोडक्ट कर देंगे. बेटर वी गो विद द फैक्टर्स. LCM का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर्स. तो फैक्टर्स जो होते हैं वो प्राइम फैक्टराइजेशन में ही होते हैं, और प्राइम नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन 1 और द नंबर इटसेल्फ ही होता है. सो वी विल ओनली बी गोइंग विद दोज नंबर्स विच आर कंपोजिट हियर. सो 4, 6, 8, 9 एंड 10 आर ओनली द नंबर्स विच आर कंपोजिट. और इनके फैक्टर्स को देखते हुए हाईएस्ट पावर डिसाइड होगा. तो वी कैन सी 2 का हाईएस्ट पावर 8 के पास है, एंड 2 इज़ अ कॉमन फैक्टर फॉर ऑल. सो वी कैन टेक 2 to the power 3, एंड देन 9 का जो हाईएस्ट पावर 3 के लिए दे रहा है दैट इज 3 to the power 2, एंड देन 5 and 7 इज द रिमेनिंग प्राइम नंबर विच इज नॉट इन द सीरीज. सो विल बी राइटिंग इट डाउन 5 into 7, एंड फाइनल आंसर वी आर गेटिंग एज 2520 as the correct one for the number which is divisible by 1 to 10. तो इसमें क्या करना था, ओनली वी रिक्वायर टू कैलकुलेट द एलसीएम ऑफ ऑल दीज नंबर्स. तो जैसे ही एलसीएम निकल जाएगा आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा. So next number question we are going on.
3 bell rings at an interval of 4, 7 and 14 minutes. All 3 rang at 6 a.m. When will they again ring together? तो जब भी ऐसा टाइम का क्वेश्चन आता है, मेक श्योर कि टाइम जो आगे आने वाला है वो तीनों दिए गए नंबर से ज़्यादा ही होगा. टाइम कभी घटता नहीं है. टाइम इज़ ऑलवेज मूविंग इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन. और जब भी हम कुछ बड़ा निकालते हैं, कुछ आगे करके निकालते हैं, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एलसीएम एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द क्लास. कि जब भी एचसीएफ और एलसीएम कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि कौन से क्वेश्चन में क्या निकालना है. सो इफ़ द आंसर विच इज़ गोइंग टू कम is lower than these 3 numbers, then we are going with HCF. But right now the time is going to increase, so the answer which is going to come is higher than these 3 numbers, then we are going to calculate the LCM for it. तो टाइम वाला क्वेश्चन में हम जनरली LCM ही निकालते हैं. So right now we are going to take the LCM of these 3 numbers, which is going to come as 28. All these were in minutes, so we are having 28 minutes. So the time now we are having is 6 hours, 28 a.m. So 6 a.m. it was already given. Now we are having 6:28 a.m. Next question we see is the ratio of LCM and HCF of least composite number to the least prime number. सबसे पहले तो लीस्ट कंपोजिट नंबर जैसे हमने देखा था वॉज 4 एंड द लीस्ट प्राइम नंबर जैसे हमने देखा था वॉज 2. तो इन दोनों का रेशियो मांग रहा है. तो 2 1s 2 एंड 2 2s 4. वी कट इट आउट एंड वी आर गेटिंग 2:1. सो इट वर्क्स वेरी सिंपल एंड ईजी. नो नीड टू डिस्कस मोर अबाउट इट. नेक्स्ट, प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर विथ द डेसिमल एक्सपेंशन एज दिस मच. डेसिमल एक्सपेंशन आपका जो है वो कहीं ना कहीं जाके रुक जा रहा है. इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. ऑल्दो दिस टॉपिक इज नॉट इन योर सिलेबस बट इट इज कमिंग अंडर रैशनल और इरैशनल नंबर, सो वी मस्ट लुक आफ्टर दिस. जब भी ऐसा होता है, सो वी कैन राइट दिस गिवन नंबर एज 44132 डिवाइडेड बाई 1000. और 1000 के जो फैक्टर्स होते हैं देयर मस्ट बी 2 and 5 सो दैट वी आर गोइंग टू गेट terminating decimal expansion, as such question is there in the NCERT book. So जब भी ऐसा दिया रहे terminating decimal expansion होगा और उसका फैक्टर हमेशा 2 और 5 होने चाहिए. So okay, next question we are going to get. ये भी बिल्कुल वैसा ही कुछ क्वेश्चन है. that is a square is equals to 23/25. then a is कैसा नंबर होना चाहिए? a रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, होल नंबर और इंटीजर. कैसा नंबर ये हमें होना चाहिए? सो वी विल बी सीइंग इट. 25 के जो फैक्टर है वो वी कैन राइट एज 2 to the power 0 एंड 5 to the power 2. सो दोनों ही हमारे नंबर्स इसमें अवेलेबल हैं 2 and 5. सिंस इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इट कैन बी अ रैशनल नंबर ऑल्सो. Next and the last one we'll be discussing here. Okay, 2 more questions we have. If LCM of x and 18 is 36 and HCF of x and 18 is 2, find x. हमेशा 2 नंबर जो है वो ब्रैकेट में कभी कभी दिए रहते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर. तो हमें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पता है कि प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM. सो अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू सॉल्व फॉर x and we are going to get x as 4. Next we are going to see the next one. This is quite important one. If the sum of the 2 number is 1215 and their HCF is 81, then the possible number of pairs are. ऐसे कितने नंबर के पेयर्स बन सकते हैं जिनका सम होगा 1215 और उनके HCF होंगे 81. तो ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है. प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर डूइंग दिस. सबसे पहले तो हमें पता है कि 2 नंबर हम ले लेते हैं x और y. उसका HCF है 81, मतलब 81 दोनों के ही पास एक फैक्टर रहा होगा. सो 81x प्लस 81y इज इक्वल्स टू 1215. नाउ 81 इज कॉमन इन बोथ द साइड्स. वी कैन टेक टू द नेक्स्ट साइड, दैट इज 1215 डिवाइड बाई 81 इज इक्वल्स टू 15 ऑन डिवाइडिंग इट. सो द 2 नंबर्स सम इज कमिंग एज 15. तो ऐसे कितने पेयर्स हमें मिलते हैं जिनका सम है जो 15 आता है, और ये दोनों ही नंबर्स कैसे होने चाहिए? अब इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए. इसका मतलब ये को प्राइम नंबर का पेयर होना चाहिए या फिर प्राइम नंबर का पेयर ले सकते हैं. सो फर्स्ट पेयर आई एम गेटिंग इज 1 and 14.
किसी को भी आप 1 रखिए, किसी को भी आप 14 रखिए. सेकेंड पेयर आई एम गेटिंग एज 2 and 13. नेक्स्ट पेयर आई एम गेटिंग एज 4 and 11 and 7 and 8. सो 4 पेयर्स आई एम गेटिंग हियर जिसका कि कोई भी और फैक्टर नहीं मिलेगा, बिकॉज इसका HCF जो है हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, दैट इज 81. So 4 pairs are coming in this question. So this is a bit important one. Next question is also important. The LCM of two prime numbers P and Q, where it is already given कि P जो है वो Q से बड़ा है, is 221. 221 हमारा LCM है. Find the value of 3P minus Q. सबसे पहले तो LCM जो नंबर है वो किसी दो प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, बिकॉज P और Q जो है एक प्राइम नंबर है. तो ऐसे दो प्राइम नंबर को हमें ढूंढना होगा जिसका मल्टीप्लिकेशन 221 आता है. सो प्राइम नंबर लास्ट में 1 है, इसलिए हम 3 और 7 के साथ जाते हैं, और 13 और 17 करने से हमें 221 मिलता है. इसका मतलब P और Q का जो है एक वैल्यू हमने फाइंड आउट किया, एंड डेफिनेटली वी विल टेक P as 17 and Q as 13 because P is greater than Q, and we will put the value as 3 into 17 minus 13, and we are going to get 38, which is the right answer and is option also given here. These are a few questions from your first chapter, and in the next video I'm going to come upon with the next chapter MCQ questions. Hopefully you'll be reading it nicely, and any doubt if you are having it you can ask in the comment section for YouTube videos. Okay, thank you very much.